Morning, students. Once again, welcome back in social science subject live class. Good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. Okay. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 10th. Okay. So as all of you know, that currently we are discussing in our subject geography. Okay. Chapter number 1. So far we have completed 2 chapters in civics. Okay, that is democratic politics, power sharing and federalism. I hope that all of you have completed your notes, question and answers. Okay, because within a day or two I will start the correction part by asking first the notebooks of colony students, and then after I start collecting from the beige board and Upperwali. Okay, so that when the schools will reopen, okay, I would have less workload. Okay, at the same time, completion of note is a regular practice, so all of you should complete your notes. Okay, if those who have not completed. So as I can see right now, only 26 participants have joined the class. Okay, it's a poor ratio. Well, so let us start where we have left yesterday. Okay, so is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, but your faces are not visible to me. Why it is happening? आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे. So what to do? Please switch on your videos. अपना वीडियो स्विच ऑन करो. यस, कमलाकांत. हाँ, प्रशीक उपरे. Yes, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग प्रशीक. Sir. You are not visible. Yes, sir. हाँ, so we want to see you. Yes, sir. हाँ, वीडियो ऑन करो. Yes, Harshal, and your video must remain on, okay, all the time, so that I can scroll down and see those who are watching or those who may have moved out. Okay, सब अपना अपना अक्ल इस्तेमाल कर लेते हैं. Hey, चलिए. Well, so this was the portion that we are supposed to start. Okay, and why the land is important? Because it supports all the activities, okay, which the human being need to do. Okay, so land is an asset of a finite nature. Now land is an asset of a finite magnitude. What does it means? कि जमीन की जो क्वांटिटी है वो कैसी है? फाइनाइट है, फिक्स है ना? फिक्स इन अ सेंस कि द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज फिक्स. जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी. आप जमीन को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, जमीन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते. यानी कुल मिलाकर अर्थ पर जितना लिथोस्फीयर है उतना ही रहेगा. इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला नहीं है. ठीक है, सो अर्थ लैंड इज ए definite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning. ठीक है, लैंड को बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ क्या करना है? यूज करना है. गॉट इट? ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट. So India has land under a variety of relief feature, namely mountains, plateaus, plain and island. It means whatever the land available in India, it is in the form of mountain, plateau, plain and island. About 43% of the land area is
प्लेन, है ना। तो टोटल जमीन जो हिंदुस्तान में है उसका 43% क्या है, प्लेन है। नाउ सिंस इट इज अ प्लेन एरिया, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो लैंड इज प्लेन, on the plain land agriculture is possible, and at the same time establishment of industry is also possible on plain area। ठीक है, जो प्लेन एरिया होंगे वहीं पर क्या होगी, इंडस्ट्री अच्छे से एस्टैब्लिश हो सकती है। ठीक है, गॉट इट, ओके। सत्यम चंदेल, सत्यम चंदेल, स्विच ऑन योर वीडियो। कल तुम 11% पे गायब हो गए थे, तो सत्यम चंदेल स्विच ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आई विल डायरेक्टली कॉल योर फादर। सत्यम चंदेल वीडियो ऑन करो, नहीं तो सीधे तुम्हारे फादर को कॉल करूंगा मैं। चलिए, सो 43% of the land is plain, and on that land agriculture and industries are there. Then mountain account for 30% of total surface area of the country। ठीक है, तो 30% area is mountain, but it ensure the perennial flow of some river, है ना। mountains के कारण क्या है, there are rivers which have water throughout the year। पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में जो प्लांट कवर है, फॉरेस्ट कवर है, द फॉरेस्ट कवर कंजर्व वाटर एंड दस इट एंश्योर दैट द रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। एट द सेम टाइम माउंटेन्स प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। About 27% of the area of the country is the plateau region। ठीक है, कंट्री का लगभग 27% एरिया क्या है, प्लेट्यू। ओके, सो दैट इज व्हाट द ओवरऑल परसेंटेज बीइंग गिवन about the different landforms। okay, so I am repeating it again, 43% plain, 30% is what, mountain, 27% is what, plateau। okay, now this plateau region has rich reserve of minerals, fossil fuels and forest। okay, so India का जो maximum, इंडिया में जो maximum mineral resources हैं, these mineral resources are found in the plateau region। okay, ये resources कहाँ मिलते हैं, plateau region में मिलते हैं। These resources are found in plateau region। yes, Manojay Day, switch on your video। Yesterday my internet problem was there. हाँ, internet problem is there only in one class or all the classes? No, it was not there after 9:30. After 9:30 it is, problem is not there na? No, means after 9:30 yesterday it was not there. It is there today. It is there today, good na? Yes, okay, it is. so can I take out the overall percentage of the classes that you have attended last 10 days? पिछले 10 दिनों का मैं परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस निकाल लेता हूं। ठीक है, एंड आई कैन शो यू कि सिर्फ एक सिंगल डे था वेर योर परसेंटेज इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, बी केयरफुल। चलो नाउ, सो नेक्स्ट इज ए लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, नाउ सो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस मतलब कुल मिलाकर हमारे कंट्री में इतना लैंड है, जितना भी है, अब उसमें क्या क्या हो रहा है। got it, what is there on this land? So land is covered or used for various purposes। okay, in some cases it is a natural growth and in some cases
Human being is using these resources. For example, the first use of land resource is forest. Okay, so certainly the forest is naturally grown. Forest is naturally grown vegetation. Human being are only managing the forest. Okay, then there is a land which is not available for cultivation. Now land not available for cultivation मतलब इस पर कभी भी खेती नहीं की जा सकती. प्रयास करें, कोशिश करें तो भी एग्रीकल्चर नहीं होगा. ओके, सो इट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, द बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड. बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन है, पत्थर है, कंकर पत्थर है, कुछ भी करो कुछ फसल होने वाली नहीं है. वेस्ट लैंड मतलब किसी जमाने में शायद यूजफुल थी, बट द ह्यूमन बीइंग डन सम एक्टिविटी ड्यू टू विच इट बिकम वेस्ट. ओके, देन सेकंड इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज. देन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ठीक है, सो इन केस ऑफ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दीज आर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. अब परमानेंट पास्चर मतलब ऐसी जमीनें जो विलेजेस में गवर्नमेंट ने खाली छोड़ रखी थी. ये जो खाली जमीनें हैं, इन खाली जमीनों पर क्या होता है? इन खाली जमीनों पर गांव के जो लोग हैं अपने एनिमल्स को, ठीक है, उनके जो लाइव स्टॉक है, सो लाइव स्टॉक्स आर रियर्ड ऑन दीज. यस सोहम टेम्बे, गुड मॉर्निंग. तुम्हारा भी बड़ा कंप्लेंट रहता है. यस सोहम टेम्बे, वेयर आर यू? सोहम टेम्बे, वेयर आर यू? गायब हो गया है ना कॉल करके. ठीक है, आई विल सी द मैटर लेटर ऑन. सो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोज. ठीक है, ऐसी जमीन जिसपे डिफरेंट टाइप की ट्री क्रॉप्स होती हैं. देन कल्चरेबल वेस्टलैंड. ओके, यानी इस प्रकार की जमीन विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years. नेक्स्ट इज अ फैलो लैंड. फैलो लैंड मतलब जिसको खाली छोड़ दिया, ये छोड़ ही दी, कुछ करना ही नहीं है. ओके, सो करंट फॉलो लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 agricultural year. And then other than cultural follow. Net sown area. Now this is the most important thing. This is the most important agricultural land. Okay, what is it? Net sown area. Okay, इतना जितना हमने पढ़ा इसमें से examination point of view से this one is important one, because the question could be asked from this. ठीक है, समझ में आ रही है? So there may be a question asked from this section. What is net sown area? So what is net sown area? Area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. ठीक है, तो नेट सोन एरिया की आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन भी पूछी जाएगी. ओके, इज इट क्लियर? यस, अथर्व हनुमंते, यू हैव जॉइन्ड द क्लास लेट. अथर्व हनुमंते, यू हैव जॉइन्ड द क्लास लेट. सॉरी सर. हाँ, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का लॉगिन होता है, ठीक है, मेरे पास ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग सर का मैसेज आ रहा है. जैसे चैट बॉक्स में दिखा देता हूं. इन दिस चैट बॉक्स प्रनाथी, प्रेम, सौरभ, प्रियांशु, अंगेरिकुला, प्रनाथी और संचिता, इतने लोगों के गुड मॉर्निंग सर हैं. ठीक है, जबकि मेरे मोबाइल में आई कैन सी द गुड मॉर्निंग ऑफ रिद्धि बुरड़कर, अश्विनी निकोड़े, जबकि दे माइट हैव नॉट डन एनीथिंग इन चैट बॉक्स.
तो जैसे ही लॉगिन होता है, जैसे ही लॉगिन आपका होता है, वैसे ही मेरे पास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट गुड मॉर्निंग मैसेज आता है. सो बी केयरफुल, ज्वाइन द क्लासेस ऑन टाइम. वेल, सो नेक्स्ट इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. ठीक है, छोटा छोटा सा चीज है, जल्दी जल्दी मैं रीड आउट कर देता हूं. So the use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type. Now, use of land is determined मतलब किसी भी स्थान पर जो जमीन है, लैंड है, वो किस तरीके से यूज होगा, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है. ठीक, तो जमीन का क्या उपयोग हो सकता है वो फिजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है और ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. सो व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप. ठीक है. व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स? ह्यूमन फैक्टर्स आर पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन. ठीक है. सो दिस कुड बी आस्क्ड इन ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. इसको 1 मार्क में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है. What are the physical factor to determine the use of land? What are the human factor to determine the use of land? Okay, so the physical factors are topography, climate and soil type. Human factors are population density, technological capability and culture and tradition. Okay, now so we have been given with a small diagram. Okay, this is a pie chart, है ना, diagram based on pie chart. ठीक, now this is what the general land use category in the year 1960 and 61 and general land use category in the year 2014-15. अभी इसका मतलब क्या है ना, इसको ध्यान से समझो. इसका मतलब ये है कि 1960 और 61, यानी आज के तारीख से देखें तो 60 इयर्स बैक, 60 साल पहले, 60 इयर्स बैक हाउ द लैंड वाज यूज्ड. ठीक है, और ये किसका कंपैरिजन है? 14-15, यानी आज से 5 साल पहले इंडिया का जो टोटल अवेलेबल लैंड था, इट वाज यूज्ड इन विच वे. ठीक, अब यदि वी चेक दिस वन, दिस इज नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया मतलब उतना इलाका जिसपे फसल लगाई गई, बीज लगाया गया खेती के लिए. सो 1960 और 61 में इंडिया के टोटल अवेलेबल लैंड में से जितनी जमीन हिंदुस्तान में है उसके 46.26% पर क्या हो रही थी? खेती हो रही थी, एग्रीकल्चर हो रहा था. अब उसमें क्या चेंज आया? 2014-15 इट रिड्यूस बाय अराउंड 1%. यहां 46.26% है, हियर इट इज हाउ मच? 45.5%. ठीक, गॉट इट? समझ में आया? ओके, Yes, sir. this blue one. Okay, now this is a forest area. How much it is? This is a forest region. So in 60-61 the forest region is around 18.11%. This forest has increased by 23.3%. अभी कितना हो गया ये? 23.3%. ठीक है. Now next is a barren and unculturable wasteland. Now barren land मतलब बंजर जमीन, है ना, रेत फैली हुई थी, कंकड़ पत्थर थे, खेती हो ही नहीं पा रही थी, शायद पानी की कमी थी या अन्य कारण. सो बैरन लैंड का परसेंटेज कितना था? 18.11%. फ्रॉम 18.11%, गुनगुन
Where are you looking? So barren land is 18.11%. Okay. Now इसको इधर पलटें, so it reduced by how much? 5.5%. It reduced by how much? 5.5%. 5%. है ना? Now what does it means? इसका मतलब ये है कि पिछले 60 years में 1960 से लेकर 2014-15 55 years में गवर्नमेंट के एफर्ट्स से ओके देन इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, ये जो बैरन लैंड था, ये बैरन लैंड कम होते होते कितने पे आ गया? 5.5%। यानी ये जो बैरन लैंड है इसको विद द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, with the effort of the individual people, by irrigation, by some other purposes, ठीक है, बहुत कुछ उठा पटक करके जो बंजर जमीन थी, खाली जमीन थी, उसको किस में कन्वर्ट किया? अदर पर्पस में कन्वर्ट किया। अब अदर पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हुआ कि द बैरन लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। जो बंजर जमीन थी उसको किस में कन्वर्ट किया? एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया। ठीक है मनोजय, स्विच ऑन योर वीडियो। ठीक, ओके, गॉट इट। नाउ दिस इज द वे, है ना, इस तरीके से land use pattern is compared between 1960 to 61 and 14 to 15। ठीक है, अब इसमें अगला क्या है? एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ठीक है, सो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस वाज अराउंड 4.95, इट इंक्रीज बाय 8.7%। इसका मतलब बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल करके या बैरन लैंड से किस में कन्वर्ट हुई है? नॉन एग्रीकल्चरल यूज। नाउ व्हाट इज नॉन एग्रीकल्चरल यूज? इट मे बी द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोडवेज, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, ओके, स्कूल्स एक्सेट्रा। ठीक, अभी ये कंपैरिजन है, गॉट इट। नाउ so rest of the things I am leaving for you people, okay, to watch about। चलिए next, so total geographical area of India is 3.28 million square kilometer। इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, is it clear? इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3.28 million square kilometer. So what is the total area? 3.28 million square kilometer. Prashik, switch on your video. So land use data is available only for 93% of the total geographical area, because the land use states reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, विच आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, तो वहां का जो डेटा है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। ओके, लाइकवाइज some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल सर्वे है, इट इज अवेलेबल फॉर 93% ऑफ द लैंड। नाउ द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड। ठीक है, परमानेंट पास्चर का जो लैंड है वो भी क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। नाउ डिक्रीज मींस क्या, और परमानेंट पास्चर बेसिकली क्या चीज होती थी? ठीक, नाउ ध्यान से सुनना,
during the British time period, during the British time period, and even before the Britishers, at the time of Mughal dynasty and at the time of other dynasties, okay, the village authorities kept some part of the land as a pasture for the livestock. तो मुगलों के जमाने से हजारों वर्ष से हिंदुस्तान में एक व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था क्या थी कि लगभग हर गांव में, है ना, हर विलेज में गवर्नमेंट ने, उस समय की जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन, ठीक है, सरकारी जमीन मतलब गवर्नमेंट लैंड के रूप में छोड़ करके रखी थी। अब ये जो गवर्नमेंट लैंड था, यह जो गवर्नमेंट लैंड था, है ना, सरकारी जो जमीन थी, ये किस लिए थी? ताकि इस जमीन पर जो गांव के किसान हैं, उनके लाइव स्टॉक, उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो क्या कर सकें? ग्रेजिंग कर सकें। ठीक है, तो ये जो लैंड है, इट वाज यूज्ड फॉर द ग्रेजिंग पर्पस। ठीक, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एनिमल्स की संख्या कम हुई, एग्रीकल्चर में मशीनाइजेशन हुआ। नाउ द फार्मर्स हैव स्टार्टेड परचेजिंग ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स। ओके, आज तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं विच आर हैविंग 2 ट्रैक्टर्स इन देयर होम। सो जो लाइव स्टॉक था, एनिमल्स जो था, उसकी जरूरत क्या हो गई? कम हो गई। इसलिए लोगों ने, यानी गांव के जो किसान हैं, उन्होंने वो परमानेंट पास्चर वाला जो लैंड है, उसको भी किसमें कन्वर्ट कर लिया? एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर लिया। गॉट इट? ओके, बिकॉज ऑफ दैट द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज। ठीक है, so most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or cost of cultivation of such land is very high, है ना। पुअर क्वालिटी की जमीन है, उस पे खेती करना इतना आसान नहीं है, खेती करने की लागत, कीमत बहुत ज्यादा है। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area in India comes to about 54%. बहुत सारी जमीन ऐसी है जिसपे रेगुलर खेती नहीं हो सकती। ठीक, तो ये सारी कहानी है, यू प्लीज रीड आउट। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। व्हाट डज इट मीन्स? कि इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में एग्रीकल्चर का एरिया अलग अलग है। For example, it is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, है ना। तो पंजाब और हरियाणा में जितना भी लैंड एरिया है, उसका 80% पे क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। Then it is less than 80% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands. जबकि ये जो स्टेट्स हैं, इन दीज स्टेट्स ओनली द 10% एरिया इज यूज्ड। ओके, ओनली द 10% एरिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. ओके, सो इंडिया की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू दैट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। जबकि जो डायग्राम हमने देखा था, उस डायग्राम के हिसाब से हाउ मच फॉरेस्ट एरिया आर वी हैविंग? 23.3%। यस, वृष्टि त्रिवेदी एंड रिद्धि बुरड़कर, वेयर आर यू? Vrishti Trivedi and Riddhi Buradkar. Yes, switch on your videos.
Now there is no answer from Vrishti Trivedi. It means she moved out somewhere. वृष्टि त्रिवेदी गायब हो गए है ना, ऑनलाइन आए मोबाइल रखा गायब, बी केयरफुल। चलिए, so forest area should be 33%, but as on today it is how much? 23%. Okay, it was considered essential for maintenance of the ecological balance. ठीक है, so why the forest area must be 33%? forest area 33% क्यों होना चाहिए? Because it is a proper ratio, it is a suitable ratio for the maintenance of ecological balance, है ना। हमारा जो पर्यावरण है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए कितना रेशियो होना चाहिए? 33% रेशियो। ठीक है, यदि हमारा एनवायरनमेंट प्रॉपर रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अच्छी रहनी चाहिए, ओके, टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, सो टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स, 33% area in the country must be covered under forest. Okay, a part of land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. So wasteland include rocky, arid and desert area, है ना, जहां पर पत्थर है, सूखा इलाका है, डेजर्ट है ना, we have heard about the Thar desert. ठीक, then the land put to other non-agricultural settlement like roads, railways, industries. ठीक, so continuous use of land over long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage has resulted in land degradation. इन सब के कारण क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ लैंड। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, नाउ दिस वी विल स्टडी, ओके, विथ टू डिफरेंट वेज, है ना। इसको हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट लैंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट? लैंड डिग्रेडेशन। सो व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब, सो लैंड डिग्रेडेशन मींस रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। जमीन जो है उसकी फर्टिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी फॉर द डिफरेंट पर्पसेस इज रिड्यूसिंग। ठीक है, सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बेसिकली मींस जमीन का खराब होना। जमीन क्या हो रही है? खराब हो रही है, नष्ट हो रही है। दैट इज सिंपली द लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, नाउ सो just a minute. So land is degraded, and because of the land degradation, the availability of land for different purposes is reducing. So we have to do the conservation of land. इसलिए किसकी जरूरत है? लैंड कंजर्वेशन की जरूरत है। So we have shared our land with the past generation, and we will have to do so with the future generation also, है ना। इंसान आज पैदा हुआ है, कल मर जाएगा। तो आज जो जमीन हमारे पास है, it was used by our ancestors, and when we die we have to pass this land to our coming generation. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. ठीक है, हमारी जितनी भी जरूरतें हैं उसका 95% हमें कहां से मिलता है? लैंड से। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, बट इट हैव आल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। सो ह्यूमन बीइंग यानी इंसान लैंड यूज करता है,
और जो भी लैंड यूजेस का पर्पस है, इंसान की अलग अलग एक्टिविटीज के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जमीन खराब हो रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर्स आर यूजिंग chemical insecticides and pesticides on a large scale. Okay, apart from insecticides and pesticides, the chemical fertilizers are also used. Because of the excessive use of chemical fertilizers and insecticides, chemical fertilizers और insecticides के excessive use के कारण, ठीक है, इनके एक्सेसिव यूज के कारण, ओके, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत तेजी से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। When the fertility of the soil is decreasing, the land would not be available for agriculture. यदि सॉइल की फर्टिलिटी इसी तरीके से डिक्रीज होती रही तो बड़ी जल्दी लैंड जो है वो किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, ओके। एट द सेम टाइम देयर वेर मैनी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, जैसे ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है? Because of the activities of human beings, ठीक है, the natural processes of land degradation are also speed up. Yes, Manish Vidate is here. Manish Vidate. Yes, Manish Vidate. Okay, ठीक है, well, so some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying have contributed significantly in land degradation. ठीक है, so land degradation में सबसे ज्यादा रोल किसका है? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, नाउ इट इज 11:19 स्टूडेंट्स, सो I am bound to stop the session, but before binding up the session, okay, just let me take out to show you that hydroponic agriculture, better we'll do it tomorrow. Okay, so dear students, we are binding up this session here only. Okay, so I am stopping my screen presentation. You can also quit from the class. Okay, so that's all for today, students. Thank you, goodbye. Thank you, Have sir. a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello.